तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी लास्ट के जो 20 डेज आपके पास बचे हैं उसमें आपकी अप्रोच सी सेट पेपर को लेके क्या होनी चाहिए, आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपका मॉक टेस्ट आपको जो लगाने हैं कौन सी कोचिंग के लगाने हैं, कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, राइट। किस तरीके से आपको लास्ट के 20 डेज में अपने बेसिक्स को रिवाइज करना है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज करने हैं। सो ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, राइट। इसमें मैं आपको आपका डेली रूटीन बताऊंगा, टेस्ट किस दिन लगाना है, आपको कितने बजे लगाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द टाइप ऑफ स्टूडेंट। So as you can see in this pictures, there are majorly three type of student. One is who has not started their CSAT preparation still. Till now they have not started their CSAT preparation, but they will do it now. And others are who are struggling, right? Who are in the process, okay, who are following the guidelines and they are doing CSAT. And there is third kind who have finished, right? So as you can see in this picture, they have finished their CSAT preparation. So I will talk about all three, like what they should do. But I am telling you first major thing that all three, there is still enough time, you all three can crack. No matter in which stage you are, you can crack CSAT paper, right? So this first one who has not started study, they can also crack CSAT paper if they are doing the smart work, right? And this struggling are the best one, because why I am saying this is the best one, because they are continuously trying, right? They are continuously improving their CSAT or GS even, right? So these are the people who have finished. They are like they will become overconfident, because the last moment, the last month, last 20 days are very important, right? So no matter how many times you have finished your syllabus, you should still keep doing revisions, keep reading, right? Keep solving the mock test. So this thing they should do. If they are not doing that, so in the last moment, so what will happen in the exam? They will do blunder. So these are the people who was studying or still studying, right? And these are the people who are not able to study because of some reason, because maybe they was busy in some their graduation exams, or some was busy in GS preparation, right? So there are many reasons, or they may have their own personal reason. Personal reason could be like they are not, as you can see, they are not able to control their mind, so they are busy in YouTube, Twitter, right, Facebook, Telegram, so in all those things. But still, if they follow some guidelines, so they can also crack the CSAT paper, right? So what each one should do, we will talk about it in a आगे वाले पीपीटीज में हम बात करेंगे कि इन सब को क्या करना चाहिए. सो दिस इज फॉर ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट, नो मैटर यू आर इन विच स्टेट ऑफ योर स्टडी. आप किसी भी स्टेज में हो, आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करना चाहिए. दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, उनमें पाया है कि दैट दे हैव अ ब्लेंडर माइंडसेट, राइट? So their mindset itself is a blender. So in the exam also they will create a blender, right? So at last what will happen? They will create a blender with their GS paper also and with CSAT paper also. And in this process what will happen? They will blender with their attempt of UPSC, right? And they will waste 2 year here minimum. If they are doing blender here, even if they rectify those mistake in the next year, still they will be 2 year behind the process, right? So what is that mindset? I have seen many students, what they do, they think कुछ और अच्छा material मिल जाए. This, they are continuously searching for some good material. They are searching on the YouTube, they are searching on the Telegram, right? So digitally they are searching, and they are also visiting the Xerox center, they are visiting the book center, right? So they are searching on every possible place. They are even searching in friend's house, right? So they think that whatever the material they are having, that is not sufficient. So they continuously in a search process, right? So what this kind of people do, they are continuously searching, right? They are not reading, no matter उनके पास रामायण भी रखी है, महाभारत भी रखी है, सब कुछ उनके पास है, but still they will search. Okay, so this is their mindset. The second is what they do, they think that I have books, or I have saved the video, or I have purchased the book, or I have Xerox, right? So what does it mean? It means उनको लगता है कि मेरे पे अच्छा मटेरियल है और मैंने मेरे पास रखा है, राइट? मेरी बुक शेल्फ में है, मेरे कमरे में रखा है, राइट? मेरी लाइब्रेरी में रखा है. तो रखा होने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, राइट? आपको वो पढ़ के फिनिश करना है, उसके रिवीजन करने हैं. तो आपको उस प्रोसेस में, उस स्टेज में आना है.
अगर आप सिर्फ बोल रहे हो, जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी है, सो व्हाट दे से कि सर वो प्लेलिस्ट, जो वीडियो की प्लेलिस्ट है वो मैंने सेव कर ली है, या मैंने उसको सेव करके रखा है, या मैंने वो बुक परचेज कर ली है, राइट, या मैंने वो ज़ेरॉक्स करा लिया है। अरे ज़ेरॉक्स नहीं कराना है आपको, उसको ज़ेरॉक्स करा के आगे पढ़ना भी है। परचेज़ करने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना भी है, बिकॉज़ नाउ दिस इज़ ए हाई टाइम। इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट नाउ, तो फिर कब करोगे? फिर तो अगले साल ही होगा, इस साल तो नहीं हो पाएगा अगर अभी नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है? तो आपको इसमें अभी ही पढ़ना है, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपने खरीद के रखा हुआ है, जिसको आप सोच रहे हो मैं करूँगा, करूँगा, उसको अभी ही फिनिश करके खत्म करना है, राइट? एंड दिस इज़ द थर्ड पॉइंट, दीज़ आर 2 पॉइंट, दिस इज़ थर्ड पॉइंट। उनको क्या लगता है कि सर नाउ आई हैव सो मैनी मटेरियल, अब मैं ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, क्या-क्या करूँ, राइट? सो इससे क्या होता है कि उनको टेंशन हो जाती है, दे गेट पैनिक, राइट? एंग्जायटी हो जाती है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, एंड दे फील देमसेल्फ एज़ दे आर ओवरबर्डन, राइट? सो देखो, ये एग्ज़ाम में आपको प्रिपरेशन तो ऑर्गेनाइज़ करनी ही पड़ेगी। इफ़ योर स्टडी इज़ नॉट ऑर्गेनाइज़, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, राइट? और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आपके चांसेस रिड्यूस होते जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के, राइट? सो आपको टेंशन हो रही है, टेंशन सबको होती है, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज हैविंग टेंशन, राइट? पैनिक सब होते हैं, एनजाइटी भी सबको होती है, ठीक है? कन्फ्यूजन सबको रहता है। आप टीचर से बात करिए, फ्रेंड से बात करिए, राइट? कन्फ्यूजन को दूर करिए। आपको पढ़ना तो है ही, आपको जीएस भी पढ़ना है, सी सेट भी पढ़ना है, राइट? तो आपने देखा होगा आजकल जो लोग हैं वो सी सेट की वजह से प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। नाउ जीएस इज नॉट द मेन रीजन, सी सेट इज द मेन रीजन, राइट? सो सी सेट पे तो आपको फोकस करना ही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो आप सोच लीजिए आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? आप खुद को खाई में धकेल रहे हो, राइट? तो आपको ये जो सारी चीज़ें आपको होंगी, टेंशन हो रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है, इससे आपको डरना नहीं है, इसको ओवर पावर करना है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से डर जाओगे, फिर तो आपका टाइम खराब हो ही गया, राइट? तो पहले भी आपके पास कुछ नहीं था, आगे भी कुछ नहीं होगा ऐसे तो, राइट? तो आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं। ओके, तो आपको तो इससे बिल्कुल भी नहीं डरना है। नो मैटर कितनी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप कौन सी सिचुएशन में हो, आपको उसको ओवर पावर करना ही होगा, तभी ये एग्जाम निकलेगा, राइट? तो उसके लिए कोई और आके नहीं कराएगा, आपको ही एफर्ट करने हैं। हम आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, हम आपको सिर्फ बता सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, पर आपको चलना खुद पड़ेगा, ठीक है? सो दीज आर द ब्लंडर माइंडसेट। तो ये एग्जाम में ब्लंडर करेंगे अगर आप इसमें से कुछ भी ऐसा कर रहे हो, राइट? और आपको ये एग्जाम अगर क्लियर करना है, तो आपको ये सब नहीं करना है। नाउ आई हैव सीन मैनी पीपल हु से कि सर मूड रिफ्रेश कर लेता हूँ, उसके बाद पढ़ूंगा, राइट? तो उनका मूड ही रिफ्रेश नहीं होता है। सो मूड रिफ्रेश करने के लिए उनके पास क्या क्या तरीके हैं, आपको सुन के हंसी आएगी, मुझे खुद आती है। उनको लगता है कि लेट्स वॉच सम इंस्टाग्राम रील, राइट? वो इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, या यूट्यूब पे रील देखते हैं, ठीक है? नहीं तो नेटफ्लिक्स पे जाके कोई सीरीज़ देखते हैं, राइट? प्राइम पे जाके कोई सीरीज़ देखेंगे, आजकल तो इतने सारे हो गए हैं, किसी पे भी जाके कोई सीरीज़ देखेंगे, और उनको लगेगा कि ये देख के मेरा मूड रिफ्रेश हो जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा या पढ़ूंगी, राइट? या वो क्या बोलते हैं कि सर देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स, तो मुझे इससे टेंशन हो रहा है, तो अब मुझे टेंशन हो गया है, तो अब मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो सबसे पहले तो मुझे टेंशन को दूर करना पड़ेगा। तो टेंशन को दूर करने के लिए मुझे ऐसा करता हूँ, या तो मैं, मतलब आई शुड गो फॉर सम एंटरटेनमेंट, राइट? सो एंटरटेनमेंट के लिए या तो मुझे दोस्तों के साथ कुछ गॉसिप करनी पड़ेगी, या फ़ोन पे बातें करनी पड़ेगी, या मेरे को पार्टी पे जाना पड़ेगा, राइट? बिकॉज आई नीड ए रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट दे नीड, वाई दे नीड रिफ्रेशमेंट? क्योंकि उनको टेंशन हो गया। रिफ्रेशमेंट इसलिए नहीं चाहिए उनको कि वो बहुत पढ़ लिए हैं, ठीक है? उसके बाद का नहीं है ये, राइट? एक होता है कि आपने बहुत पढ़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो नाउ यू नीड ए रिलैक्स टाइम, राइट? सो बिफोर इवन स्टडिंग, उनको टेंशन हो गई है, उनको उस टेंशन को दूर करने के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए, राइट? तो उसके लिए वे एंटरटेनमेंट करते हैं। तो एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके पास, जैसे मैंने बताया, रील्स देख रहे हैं, ठीक है? या कोई सीरीज देख रहे हैं, राइट? फेसबुक पे हैं, या चैटिंग कर रहे हैं, राइट? तो वो क्या बोलते हैं कि सर मैं मूड बना रहा हूँ पढ़ने का, राइट? मैं मूड बना लेता हूँ बिकॉज मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करूँगा तो मेरा मूड कैसे बनेगा, और अगर मेरा मूड नहीं बनेगा तो मैं पढ़ूंगा कैसे, राइट? सो व्हाट इज दिस माइंडसेट? दिस इज ब्लेंडर माइंडसेट, राइट? बिकॉज अगर आप ये सब कर रहे हो, अगर आपके पास भी यही सारे एक्सक्यूज आप यूज करते हो कि सर मैं मूड रिफ्रेश कर लेता हूँ, मूड बना लेता हूँ, बिकॉज अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, राइट? तो अभी तो आपको ये सारी चीजें भूल जाना है, अपने गोल को देखना है, व्हाट यू वांट टू बिकम, आपको क्या करना है। नो मैटर आप बोलो कि मेरी ये तैयारी नहीं हुई है, वो नहीं हुई है, वो बाकी है, ये बाकी है, वो ठीक है, पर आपके पास जो टाइम है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, राइट? तो आपके पास जो अभी जितने भी दिन बचे हैं उनको तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, राइट? तो आपको इन सारे माइंडसेट से बाहर आना है। इन सब माइंडसेट से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने गोल के बारे में सोचना है। आपका गोल क्या है, आपको बस वही बोलना है। आपका गोल है मुझे आईएएस बनना है, ठीक है?
तो आपको अपने आप को यही बोलना है कि मुझे आईएएस बनना है, राइट। अगर आप अपने गोल पे फोकस करोगे तो ये जो आपका माइंड और बॉडी जो एक्सक्यूज ढूंढता है आप उस पर ओवर पावर कर पाओगे, ठीक है। देखो, हर चीज की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कई बार हमें क्या लगता है, प्रायोरिटी इज नॉट सेपरेट, प्रायोरिटी कम्स विद टाइमिंग, राइट। एक टाइम पे कोई एक प्रायोरिटी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एग्जांपल देता हूं, जैसे अब आफ्टरनून हो गया या मॉर्निंग है, तो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम है, ठीक है। तो वहाँ पे प्रायोरिटी क्या हो जाएगी कि आप ब्रेकफास्ट करोगे, राइट। नाइट हो रही है, तो नाइट में क्या करते हैं लोग बाग, सोते हैं, तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि आई विल स्लीप। सो सिमिलरली देयर शुड बी अ टाइम फॉर स्टडी। जब वो स्टडी का टाइम है तो उस समय आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि दिस टाइम मैं अभी कोई रिफ्रेशमेंट नहीं करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मूड बनाने नहीं जाऊंगा, ठीक है, कोई चाय पीने नहीं जाऊंगा, अभी मुझे पढ़ाई करनी है बिकॉज दिस इज अ टाइम ऑफ स्टडी। तो आपको इस ये माइंडसेट रखना है, तभी आपकी पढ़ाई हो पाएगी, राइट। अगर आपको अपना गोल क्लियर नहीं दिखेगा, आप उसके प्रति मोटिवेटेड नहीं होगे, तो आपका माइंड और बॉडी ऐसे ही एक्सक्यूज ढूंढते रहेंगे और इस वजह से आपके अटेम्प्ट्स खराब हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं होने देना है, आपको इसको रोकना है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जाम, राइट। मैंने यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हैं कि आप समझ पाएँ कि क्या डिफरेंस है जीएस के पेपर में और सी सेट के पेपर में, राइट। तो उनकी अप्रोच अलग कैसे होती है। जैसे आप देखिए जीएस में क्या होता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप गेस करके आंसर कर सकते हैं, बट सी सेट में आप गेस नहीं कर पाएंगे। तो सी सेट में ये जो गैस वर्क है ये बिल्कुल काम नहीं करता है, इसीलिए सी सेट में लोग ज़्यादा फेल होते हैं, ठीक है। जीएस में गैस वर्क काम कर जाता है, इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि मेरा जो गैस होता है वो हमेशा सही निकलता है। तो आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, पर सी सेट में उन्हीं लोगों का गैस काम नहीं करेगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप देखिए यहाँ पे जीएस में क्या होता है कि एलिमिनेशन जो टेक्निक है वो काफ़ी रोल प्ले करती है। आजकल ये बात सही है कि यूपीएससी ने 1 पेयर 2 पेयर वाले क्वेश्चंस दे रहा है जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ करना बहुत हार्ड हो जाता है, बट फिर भी कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इवन 1 पेयर 2 पेयर में भी आप एलिमिनेशन टेक्निक का कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। बट सीसेट के पेपर में आप एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एलिमिनेशन का टेक्निक का यूज़ करके भी आप आंसर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। आप आरसी में कुछ हद तक इसको यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ सी सेट में आप नहीं कर पाएंगे। अगर थर्ड डिफरेंस हम देखें कि जीएस का कोई टॉपिक है तो आप उसको एग्जाम से 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सी सेट की तैयारी किसी भी टॉपिक की, ना तो क्वांट की, ना एलआर की, ना आरसी की तैयारी आप 1 दिन पहले या 1 घंटे पहले नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस पेपर, सी सेट पेपर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सो दिस पेपर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, राइट। सी सेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस से मतलब क्या होता है कि आप डेली डेली उसको करेंगे तो ही आप उस चीज में एक्सेल कर पाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो जीएस का पेपर है आप उसको एंजाइटी प्रेशर में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बाय डिफॉल्ट है एंजाइटी प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा रहेगा। पर सी सेट में आप फिर भी उस प्रेशर को फेस करते हुए, उस एंजाइटी में रहते हुए जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मिस्टेक्स होती है पर जीएस में फिर भी कम मिस्टेक्स आप करोगे। पर सी सेट के पेपर में क्या होगा कि आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चंस आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा आपने क्वेश्चंस पढ़ा ही नहीं है। तो सेकंड पेपर जो सी सेट है उसमें आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा कूल एंड काम होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अदरवाइज आपको लगेगा कोई क्वेश्चन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आया है, मैंने बहुत करा हुआ है, लेकिन आपसे वहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, और जब आप उसको घर आके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। आरसी का पूरा आप पैसेज पढ़ लेंगे, आपको लगेगा आपने पढ़ाई नहीं है, आप दोबारा पढ़ेंगे फिर आपको लगेगा आपने पढ़ाई नहीं है पैसेज, आपको उसका कुछ भी याद नहीं रहेगा। ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड प्रेशर, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कूल एंड काम रखना है अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे हो जाएगी आपको, ठीक है, कि कैसे कूल एंड काम रहना है एग्जाम में, राइट। सारे लोगों के साथ सेम प्रॉब्लम है, आप ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हैं जिसको ये सब होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो दीज आर सम बेसिक डिफरेंस, सो वी शुड अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्जाम, राइट, देन ओनली वी कैन डू बेटर इन दैट एग्जाम, राइट। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि सी सेट में लोग क्यों फेल होते हैं, क्या डिफरेंस है जीएस के पेपर और सी सेट के पेपर में। अगर आप ये चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन मैनी स्टूडेंट आस्क फॉर मी, सर व्हाट इज द बेस्ट मटेरियल फॉर सी सेट। सर सी सेट का ये एक मटेरियल आप हमें बता दो विच इज़ द बेस्ट वन, राइट। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि पहले आप ये बताओ कि ये जो मटेरियल है, बेस्ट तो छोड़ो, पहले आप मुझे मटेरियल के बारे में बताओ, व्हाट इज़ मटेरियल, राइट। उसमें क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मैं बोलता हूँ ऐसे तो सी सेट के लिए अगर आप देखो मार्केट में आज से नहीं कितने सालों से कितनी बुक अवेलेबल है जो एसएससी के लिए हैं, बैंक के लिए हैं,
राइट। और जितनी भी स्टेट की एग्ज़ाम होती है, इंश्योरेंस की एग्ज़ाम होती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, सबके लिए सब में मैथ, रीजनिंग, राइट, और आरसी आता है। तो आपके पास बुक्स तो हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ वो वाली बुक्स है आपके पास, बहुत सारी बुक्स हैं, क्या वो मटेरियल है? तो बोलते हैं नहीं सर वो मटेरियल नहीं है। मैं बोलता हूँ क्यों नहीं है? उनमें बेसिक्स है? बोलते हैं हाँ सर उसमें बेसिक्स तो है, वही वाला बेसिक्स हमें सीसेट के लिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप बोल रहे हो इनमें बेसिक है, इन वाली बुक्स में, राइट, जो भी इन एग्जाम्स के लिए बुक आती है उनमें बेसिक है, ठीक है। पर आप इनको मटेरियल नहीं मान रहे हो, ठीक है। तो आप क्या चाहते हो उस मटेरियल में क्या हो? क्योंकि वो बोलते हैं कि सर उसमें जो यूपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है वो नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा मटेरियल चाहते हो जिसमें यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हो, राइट। सो दैट विल बी द बेस्ट मटेरियल, राइट, जिसमें यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हो, ठीक है। मतलब यूपीएससी वाले पीवाईक्यूज हों, राइट, उस बुक में पीवाईक्यूज हों। तो मैं बोलता हूँ उनको, तो फिर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज को ही क्यों बेस्ट मटेरियल नहीं मानते हो? राइट, आप ऐसा क्यों चाहते हो कि पीवाईक्यूज किसी बुक में छपे हों तभी वो बुक बेस्ट बनेगी? आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज ले लो ना, राइट। तो आप डायरेक्टली पीवाईक्यूज को ही बेस्ट मटेरियल क्यों नहीं मानते हो? अगर आप देखो, दीज पीवाईक्यूज आर लाइक द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय यूपीएससी टू यू, राइट। आप सोचो जब 2011 में फर्स्ट टाइम सी सेट आया था, उस समय एक भी पेपर नहीं था सी सेट का प्रीवियस ईयर का। तो उस समय जो लोग सेलेक्ट हुए या उस साल जिन लोगों ने एग्जाम दिया उन्होंने किस हिसाब से तैयारी करी होगी, उन्होंने कौन सा मटेरियल फॉलो करा होगा, राइट। आपके पास तो 2011 से लेके 2022 तक 12 साल के पेपर हैं, हर साल 80 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सो टोटल आपके पास 960 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, 1000 क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। 1000 क्वेश्चन, 1000 आंसर आपके पास अवेलेबल हैं। और आप उस चीज़ को 1000 क्वेश्चन की अगर आप बुक बनाओगे, कितनी मोटी बुक बनेगी आपको पता है सॉल्यूशंस के साथ। और आप उस चीज़ को एक अच्छा मटेरियल नहीं मान रहे हो, पर आप इनडायरेक्टली चाह वही रहे हो। आप चाह रहे हो कि सर कोई ऐसी बुक हो जिसमें यूपीएससी के टाइप के क्वेश्चन हो या यूपीएससी के पीवाईक्यूज हो। तो देखो कोई भी आदमी यूपीएससी के टाइप वाले क्वेश्चंस नहीं बना सकता है, राइट, क्योंकि यूपीएससी के पास जितने रिसोर्सेज हैं उतने किसी के भी पास रिसोर्सेज नहीं है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, कोई भी कॉलेज हो, कोई भी हो, राइट, वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है यूपीएससी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है ऐसे रिसोर्सेज किसी भी इंस्टीट्यूशंस के पास होंगे? ऐसे इंस्टीट्यूशन किसी भी ऐसा रिसोर्सेज किसी भी इंस्टीट्यूशंस के पास नहीं हो सकते, राइट। तो ऐसा सोचना आप बंद कर दो बिल्कुल, राइट, कि कोई भी कोचिंग, किसी भी कोचिंग की औकात नहीं है जो यूपीएससी के टाइप का एक भी पेपर बना दे, सिंगल पेपर, राइट। अगर आप देखो वो 10-10, 15-15, 50-50 मॉक करा रहे हैं, सबको कंबाइन करके उनको बोलो आप एक पेपर ही बना दो जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का हो, एक भी पेपर नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप ये सब कोचिंग्स के पीछे भागना, मटेरियल सर्च करना बंद करो। जो यूपीएससी के द्वारा पीवाईक्यूज आपको दिए गए हैं उस पर स्टिक करो। अभी टाइम नहीं है ज़्यादा, अभी आपको इधर उधर भागना भी नहीं है, राइट। आप किसी भी टॉपर या किसी से भी मिलोगे तो वो आपको जो सही सलाह देने वाले हैं वो आपको यही बोलेंगे कि आप पीवाईक्यूज कर लीजिए, ठीक है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, बेस्ट मटेरियल की सर्च अगर आपको करनी है तो बेस्ट मटेरियल यूपीएससी के पीवाईक्यूज ही हैं, राइट। तो आपको उसी पे स्टिक रहना है, वही करने हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। आप कॉन्फिडेंस रखिए, जो आपको बताया जा रहा है वही फाइनल है। आप बस आंखें बंद करके उसको कर लीजिए, बात मान लीजिए, और उसी से ही आपका पेपर निकल जाएगा। जब आपका पेपर निकल जाएगा आप खुद ही हमें आके बोलोगे कि सर आपने ऐसा बोला था और सच में ऐसा हुआ। जिन लोगों ने ये बात मानी है उन सबके पेपर निकले हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारा डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, डेली हमें सी सेट के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए डेली, राइट। सो ये क्वेश्चंस का बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है कि डेली हमें कितने आवर्स सी सेट को अभी करना चाहिए, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। तो डेली हम कितना टाइम दें ताकि हमारा सी सेट हो जाए। सो आई विल रिकमेंड कि आप डेली 2.5 घंटे दीजिए, राइट, 2.5 आवर दीजिए सी सेट के लिए। इसमें आपको 1 घंटा क्या करना है, 1 घंटा आपको देना है क्वांट को, 1 आवर देना है आपको एलआर को, एंड 1 आवर आप हाफ एन आवर आपको देना है आरसी के लिए, राइट। सो नॉर्मली आप देखेंगे कि एलआर में इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम बचेगा ये आप आरसी या क्वांट में कहीं पे यूटिलाइज हो जाएगा, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट कि आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, ये आगे हम बात करेंगे। तो हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे पढ़ना चाहिए आपको? 2.5 घंटे डेली। अब नाउ
किस टाइम पे आपको पढ़ना चाहिए। देखिए आपका जो एग्जाम होगा वो 2:30 बजे से लेके 4:30 के बीच में होगा, राइट। तो आप अभी से क्या करिए, इस चीज की प्रैक्टिस डालिए कि आप सी सेट के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्वांट के हों, एलआर के हों, चाहे आरसी के हों, आप उसी पर्टिकुलर टाइम पे सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड उस समय ट्यून हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय सोते हैं दोपहर में, राइट। वो सही नहीं है स्ट्रेटेजी, बिकॉज आपके माइंड को आदत हो जाएगी कि आप जैसे ही 2 बजेंगे आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, क्योंकि उसको आदत है सोने की, राइट। तो आप अपने आप को हैबिट डलाइए कि आप उस समय बहुत एक्टिव रहें और वही क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो ये चीज हम मॉक टेस्ट में भी बात करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको किस समय देना है। नाउ सेक्शन, कि हम कौन से सेक्शन पढ़ें। सो आई विल रिकमेंड कि आप डेली तीनों सेक्शन पे फोकस करें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, राइट। तो डेली आपको क्वांट करना है, डेली आपको एलआर करना है और डेली आपको आरसी करनी है। किसी भी सेक्शन को हम कम ज्यादा नहीं करेंगे। ये हो सकता है कि आप किसी सेक्शन में अच्छे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे सेक्शन को छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप किसी सेक्शन में अच्छे हैं तो दूसरे सेक्शन को ज्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि हमें तीनों सेक्शन को लेकर चलना है। हम किसी एक सेक्शन पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो हम चांस बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा एक भी अटेम्प्ट लूज हो, राइट। सो वी कैन नॉट लूज अटेम्प्ट। तो हमें कोई भी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना है, राइट। नाउ हाउ वी शुड वी स्टडी टॉपिक वाइज और ईयर वाइज। सो आई विल रिकमेंड आप टॉपिक वाइज जाइए। टॉपिक वाइज जाने के बहुत फायदे हैं। जैसे सपोज आप एवरेज के क्वेश्चन आर कर रहे हो, ठीक है, तो आप एवरेज के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए एक ही बार में, तो ये बहुत फायदेमंद करेगा। अगर आप ईयर वाइज जाएंगे तो सपोज यहाँ पे 2022 के आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है एवरेज से, ठीक है। 2011 में सपोज एक क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस टाइप से है, तो आपका माइंड बहुत जम्बल्ड रहेगा, ठीक है। तो आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा अपनी स्टडी पे। तो आपको कॉन्फिडेंस आपकी स्टडी पे तभी आएगा जब आप उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे आपने एवरेज फिनिश कर लिया सपोज, आज कल आप रेशो फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, परसों आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये भी पता लगेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर के द्वारा उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं, और कैसे कोई क्वेश्चन इवॉल्व हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है या उसी डिफिकल्टी लेवल के आ रहे हैं, लैंग्वेज कैसी आ रही है। तो ये सारी चीजों का फायदा आपको तभी होगा जब आप उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे, ओके। तो आपको ये चीजें तो पता लग गई। अब आपको ये करना है कि आपको इनको अप्रोच कैसे करना है, डेली किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो डेली देखिए आपको कैसे करना है, मैं आपको एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। सपोज आप आज परसेंटेज सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपने परसेंटेज टॉपिक लिया, तो आप क्या करिए, परसेंटेज का बेसिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। तो आप बेसिक पढ़ लेंगे, 10-15 मिनट आपको बेसिक्स पढ़ने हैं अपनी बुक से, जो भी आपने या तो नोट्स बना रखे हो या कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो जहां से आपने पढ़ा हो अभी तक, वहां से 10-15 मिनट आप उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि लास्ट के 12th ईयर में जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे गए हैं, जैसे परसेंटेज से 2011 से लेके 2022 तक 12 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप काम करेंगे, राइट, 1 आवर में। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सिमिलरली एक एलआर का टॉपिक उठाएंगे। सपोज एलआर का आप टॉपिक उठाते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का के साथ भी आप सेम करेंगे। उसके थोड़े बेसिक्स आप देख लीजिए पहले, उसके बाद आप लास्ट 12 ईयर्स में डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर आरसी को कैसे अप्रोच करना है। तो आरसी के लिए आप टारगेट रखिए कि आपको डेली 10 आरसी सॉल्व करनी है। और सर ये आरसी कहाँ से लेनी है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं। तो ये आरसी आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा वहां से लीजिए, ठीक है। तो नॉर्मली आप देखेंगे 2011 से लेके 2022 तक अराउंड 350 के करीब हमारे पे आरसी हैं, राइट। तो अगर आप डेली ये 10 आरसी सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसको बहुत जल्द फिनिश कर लेंगे, राइट। तो आप देखेंगे 10 डेज में ये पूरे आरसी आपके फिनिश हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे टारगेट और गोल यही है कि आप 10 दिन में जितने भी पीवाईक्यूज हैं यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो आप सारे फिनिश कर लें, ठीक है। तो आप अगर ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये जो आपका डेली शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो 10 डेज में आपका पूरा पीवाईक्यूज फिनिश हो जाएंगे। और उसके बाद आपके पास जो टाइम मिलेगा उसमें हमारे पास रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। 10 डेज और आगे हमें मिल जाएंगे, उसमें हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज को फॉलो करिए। और हमें डेली शेड्यूल में एक चीज और करना है, हमें मॉक टेस्ट भी करने हैं। तो मॉक टेस्ट के बारे में मैं डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। तो देखिए मैथ के लिए और क्वांट के लिए हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको पुरानी वाली स्लाइड्स में बताया है कि हमको डेली एक टॉपिक करना है क्वांट का, ठीक है। मैथ से हमें डेली एक टॉपिक करना है। तो सपोज जैसे आप परसेंटेज का कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे
हमारे चैनल पे वीडियोस बना रखे हैं, राइट। जैसे यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, तो आपने सपोज आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हो, 1 आवर में आपको करना है, ठीक है। तो आप इस जो वीडियोस है इसमें 2011 से लेके 2022 तक जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे इसमें आपको अरेंज करे हैं, ठीक है। तो अगर आप ये एक वीडियो देख लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, पहले आपको बेसिक्स पढ़ लेने हैं, राइट। तो पहले आपको बेसिक्स अपनी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेने हैं, उसके बाद आपको ये वीडियो स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चंस पे आप आते हैं, वीडियो को रोक दीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को चलाइए और देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को समझा गया है, ठीक है, और किस तरीके से सॉल्व किया गया है, अप्रोच क्या है, राइट। ये सब समझने के बाद आपको उसको खुद एक बार सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद आप उसको सेल्फ सॉल्व करिए एक बार, ठीक है। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, फिर सेकंड क्वेश्चन पे उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसका अगर आपको हो जाता है तो वेल एंड गुड, देन यू कैन सी। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है फिर आप देखिए कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है उसको और आप किस तरीके से कर रहे हैं, कोई उसमें गलती तो नहीं है। अदरवाइज आप डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपको अप्रोच करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मैक्सिमम सारे टॉपिक्स के वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज। तो मैक्सिमम हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ये आप यहाँ पे क्यूआर कोड है, आप इसको स्कैन करके डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे ये सारे वीडियो अरेंज किए गए हैं, राइट। तो ये आपके लिए बिल्कुल एक रेडी है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाके अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं और इससे आपको एग्जाम निकालने में बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए लॉजिकल रीजनिंग, सपोज आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो लॉजिकल रीजनिंग एलआर के लिए आपको क्या करना है, सपोज आप स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन से, ठीक है। तो आप डायरेक्शन का बेसिक्स को रिवाइज कर लीजिए, अपनी जहां से भी आपने पढ़ा है, किसी कोचिंग से पढ़ा है, कोई नोट्स बना रखे हैं या कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है, आपने जहां से भी पढ़ा है वहां से डायरेक्शन के बारे में पढ़ लीजिए। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की वहां पे जरूरत नहीं है अभी। आप डायरेक्टली ये जो वीडियो है डायरेक्शन का, इस पे आइए। यहाँ पे हमने पिछले 12 साल में, 12 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वो सब अरेंज किए हैं ईयर वाइज। तो आप उस पर जाइए डायरेक्टली, वहाँ पे इसको वीडियो को चलाइए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए जैसे हमने क्वांट के लिए किया है। सिमिलरली सेम अप्रोच आपको लगानी है। अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप नेक्स्ट पे मूव कर जाइए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप देखिए उसको कैसे सॉल्व किया गया है और यहाँ से आप वो सीख जाएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जितने भी टॉपिक्स हैं एलआर में, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, सिलोजिज्म है, कैलेंडर है, वेन डायग्राम है, सीरीज है, तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं ये आप इनको रोजाना एक एक टॉपिक को आप खत्म करेंगे तो आपके ये टॉपिक हार्डली 10 डेज में खत्म हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आपके पास 10 दिन बचेंगे और आप मेरा यकीन मानिए ये जो 10 दिन होंगे आपके, इस 10 दिन में पूरा आपका सी सेट की प्रिपरेशन पूरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा इस बार आपका पेपर सी सेट की वजह से तो बिल्कुल नहीं रुकेगा। और आप जानते भी हैं कि आजकल का जो टाइम चल रहा है उसमें मैक्सिमम लोगों का जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता उसका रीज़न जीएस नहीं होता है, उसका रीज़न सी सेट होता है। इस साल भी सी सेट का पेपर ऐसी ही उम्मीद है कि टफ ही आएगा, तो उसके लिए आपको बहुत तैयार रहना है। तो आप ये वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, राइट। अब आरसी के लिए हमें क्या करना है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो पैसेज है, उसके लिए क्या करना है। सो इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं है अभी, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको बेसिक, जैसे देखिए आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नॉर्मली अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्रेंस, क्रक्स, राइट, दिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो आप इनकी बेसिक आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि अजम्पशन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, क्रक्स क्या होता है, टाइटल क्या होता है, किसी पैसेज का अगर कोई टाइटल पूछा है तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं वही इसमें भी सॉल्व करना है लास्ट 12 ईयर के लिए। इसके लिए आप कोई भी बुक ले लीजिए जहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हों। ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको, इसमें डेली क्या टारगेट है, डेली आपको इन पैसेजेस सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके हर चीज़ बता रहा हूँ, आप पैसेज करेंगे तो आपका 10 दिन में आप ये पूरा कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो आपको 7 पैसेज टारगेट करना है डेली। 7 पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको सारे सॉल्व करने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, अदरवाइज ऑनलाइन भी आप देखेंगे कि बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होता है कि कोई ऑप्शंस क्यों करेक्ट है और दूसरा ऑप्शंस क्यों करेक्ट नहीं है, उसमें से वो चीज़ें पढ़ लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा जो पैसेज है उसकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि लास्ट 12 ईयर्स में अराउंड 300 पैसेजेस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। तो अगर आप ये 300 पैसेज कर लेते हैं तो आप सोचिए आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच जाएगी। और वो भी आप
कौन से पैसेज सॉल्व कर रहे हैं जो यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट पूछे गए हैं, वो कोई ऐसे वैसे पैसेज नहीं है जो किसी कोचिंग के द्वारा पूछे गए हैं, वो यूपीएससी के द्वारा उसी एग्जाम में पूछे गए हैं जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो द बेस्ट रिसोर्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी द पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 12 ईयर, राइट। सो ये यहाँ से आपको कवर करना है। नाउ अब देखते हैं मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल है हमारी स्टडी में, और अभी जो 20 दिन है उसमें मॉक टेस्ट क्या रोल प्ले करेगा, राइट। तो क्या हमें मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं? हमें मॉक टेस्ट बिल्कुल अटेम्प्ट करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, ये बिल्कुल कंपलसरी है, राइट। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, आपको करना ही है। अब इसमें आता है कि हम कौन सी कोचिंग के मॉक टेस्ट लगाएं। देखिए मॉक टेस्ट मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट मार्केट में जो है, सबसे बेस्ट आपको उसके लगाने हैं मॉक टेस्ट। और ज़्यादातर आप देखेंगे जो मॉक टेस्ट है वो नॉर्मली टेलीग्राम्स चैनल पे, वेबसाइट्स पे फ्रीली अवेलेबल होते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो वहाँ से आप डाउनलोड करिए, उसको आप प्रिंट कराइए और फिर उसको दीजिए। तो कौन सी कोचिंग के हमें नॉर्मली मॉक टेस्ट लगाने चाहिए? तो देखिए इसमें मैं आपको पर्सनली, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, मैं किसी कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं हूँ, बट आई पर्सनली फील कि आप विजन आईएएस के जो मॉक टेस्ट हैं वो लगाइए, वो मार्केट में अभी बेस्ट हैं, राइट। तो आप ये मॉक टेस्ट लगाइए। आई एम टॉकिंग अबाउट सी सेट, राइट। हमें किस दिन लगाना है मॉक टेस्ट? तो मॉक टेस्ट आपको हर ऑल्टरनेट डेज पे देने हैं। कौन से दिन पे देने हैं? ऑल्टरनेट डे पे आपको सी सेट का मॉक टेस्ट देना है। जो आपका वो जो 2.5 आवर का मैंने स्टडी बताई है अभी पहले, वो तो आपकी कंटिन्यूसली साथ में चलेगी ही 10 दिन तक, उसके साथ साथ ही मॉक टेस्ट भी चलेगा, राइट। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है कि पहले हमें वो फिनिश कर लेना है उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों को साथ साथ में करना है, क्योंकि अभी बस एग्जाम आ ही गया है, अब हम और वेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी से सब करना है। तो ऑल्टरनेट डेज पे आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा किस टाइम पे लगाना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर। सो टोटल हमें कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं? सो टोटल हमें अराउंड 10 मॉक टेस्ट तो देने ही है। कितने? 10, ठीक है। टोटल 10 मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है, दिस इज कंपलसरी, राइट, बिफोर द एग्जाम। नाउ व्हाट शुड बी द टाइमिंग? टाइमिंग शुड बी लाइक कि आपको एग्जाम का जो टाइमिंग है 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है आपको इसी टाइम पे डेली मॉक टेस्ट देना है। जिस दिन आपका मॉक टेस्ट रहेगा उस दिन आपकी स्टडी का टाइम आप उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना है, ठीक है। तो आपको कितने घंटे का, आपको प्रॉपर 2 आवर्स का टेस्ट देना है, ठीक है। आपको ना तो इससे 5 मिनट ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, आपको पूरे 2 घंटे बैठना है, ठीक है। इसमें ऐसा भी नहीं करना है कि मैंने आधे घंटे बैठ लिया, फिर मैं चाय पी के आ गया, फिर आधे घंटे मैंने टेस्ट दिया, फिर मैंने फ़ोन पे बात कर ली। ऐसा ब्लंडर बिल्कुल नहीं करना है। उसको बिल्कुल जैसा एग्जाम में एनवायरनमेंट होगी, उसी एनवायरनमेंट में वैसा ही एनवायरनमेंट बना के आपको एग्जाम देना है। उसको बहुत सीरियसली होकर देना है, उसको मजाक में नहीं लेना है बिल्कुल भी। उसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ना ही आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। नाउ आपको कैसे देना है? उसको पेन पेपर पे देना है कि आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे या अपने आईपैड पे डाउनलोड कर लिया तब देना है? आपको पेन एंड पेपर पे ही देना है, दिस इज मस्ट। पेन एंड पेपर पे देना है। जो आपका पेपर होगा क्वेश्चन पेपर, उसका भी जेरोक्स होना चाहिए, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, हार्ड कॉपी होना चाहिए। उसके लिए आप जेरोक्स करा लीजिए, जेरोक्स 1 रुपये का होता है, ठीक है, तो वो बहुत चीप होता है। तो इतना आप कर सकते हैं और ये आपको करना ही है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एसी में बैठ के टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में तो आपको एसी नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट होकर टेस्ट देने की कोशिश मत करें। आई विल प्रीफर कि अगर आप लोग फैन में बैठ के, नॉर्मल एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट देंगे तो वो बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम की क्या इंफ्रा रहेगा उस समय, कैसा टेबल कुर्सी मिल रहा है आपको, फैन चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या कंडीशन है ये हमें नहीं पता है। तो हमें बिल्कुल नॉर्मल एनवायरनमेंट में देना है कि हमारी बॉडी माइंड, ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो टेस्ट दे देते हैं बट उसके बाद वो रिजल्ट को चेक नहीं करते हैं। आपको चाहे आपके 10 मार्क्स आ रहे हो, 20 आ रहे हो, 50 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, कितने भी मार्क्स आ रहे हो, आपके कितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए हो, आपको अपने मार्क्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। मार्क्स आपको एब्सोल्युटली कैलकुलेट करना है, राइट। और इसमें से आपके कितने राइट हैं, कितने आपने राइट करे हैं, कितने रॉन्ग करे हैं, राइट। और फिर फाइनली आपका कितने मार्क्स बनेंगे ये आपको कैलकुलेट करना है। ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, पर ये आपको करना ही है। अब देखिए रिजल्ट्स आपका, अब आप इसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे अपने आप पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। आप इसको एज ए थर्ड पर्सन लेना है अपने आप को, ठीक है। इससे ऐसा नहीं सोचना है कि उसके में जो मेरा दोस्त है उसके तो 100 नंबर आ रहे हैं, मेरे 50 नंबर आ रहे हैं इसी टेस्ट में। तो कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना है। ये बहुत आपकी प्राइवेट चीज़ है, आप चाहें तो आप इसको प्राइवेट रखिए ताकि आप पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आए।
ये देखिए आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, राइट। आप यहाँ पे किसी से कंपैरिजन नहीं करना है आपको, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, राइट। तो इसमें आपको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि हम यहाँ से अपनी कमियां फाइंड आउट कर सकें और एग्जाम से पहले वो जो हमारी मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उसको ओवरकम कर सकें। देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपने आंसर जो है सही निकाला है, ठीक है, आंसर आपने कैलकुलेट सही किया है, बट जब आप ओएमआर शीट में मार्क करने जाएंगे तो वहाँ पे रॉन्ग मार्क हो जाता है ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अभी ही पता लग जाएंगी, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी एग्जाम में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं होने देना है, एग्जाम मैंने दे दिया, बात खत्म, राइट। उसके बाद आपको उसको एनालाइज करना है कि मैं कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही है, कौन से मेरे वीक एरिया हैं, ठीक है, कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया है। आपको ये सारी एनालिसिस करनी है। जो आपको वीक एरिया है उसको आप उस टॉपिक को आप रिवाइज करिए, उसके कॉन्सेप्ट पढ़िए, ठीक है। और आप इंश्योर करिए कि नेक्स्ट टाइम में जब आप टेस्ट लिखेंगे तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो, ठीक है। वो जो एरिया के क्वेश्चंस है वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो ये आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आरसी में आपके अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन गलत होते हैं, कौन से क्वेश्चंस आप गलत करते हैं, ठीक है, तो उन पे फोकस करिए नेक्स्ट वाली टेस्ट में, उनके बेसिक पढ़िए। एलआर में आपके कौन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, ठीक है, सीरीज़ के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो सीरीज़ को रिवाइज करिए, सीरीज़ के थोड़े क्वेश्चंस देखिए और नेक्स्ट टेस्ट में देखिए कि आप क्या वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप सेम मिस्टेक बार बार करते रहेंगे, मॉक टेस्ट का जो पर्पज है वो सारा इरोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने बताया अगर आप ये करते हैं, अपनी देखते हैं कौन कौन से एरिया में आप लैग कर रहे हैं, फिर आप वो एरियाज को रिवाइज करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी परफॉर्मेंस उस एरिया में इंप्रूव हो जाएगी, राइट। सो इन दिस वे यू शुड अप्रोच द मॉक टेस्ट, राइट। So now what is the key to success, right? So the key to success, as I have written here, the key to success is revision, right? तो जितना मैंने आपको बताया आप डेली शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, राइट, और आपने जो मॉक टेस्ट है वो भी आप कर रहे हो जिस तरीके से बताया गया है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनको रिवाइज भी करना है, राइट। तो जैसे मैंने पहले बताया जो आप काम करते हो वो तो आपका 10 दिन में आपके सारे टॉपिक्स पूरा सिलेबस सी सेट का बहुत आराम से कवर हो जाएगा। बहुत जल्दीबाजी भी नहीं कर रहे हैं हम, धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद रिवीजन करना है, यही चीज़ आपको जीएस में भी करना है, ठीक है। तो रिवीजन बहुत मस्ट है, चाहे कोई भी पेपर हो, चाहे सीसेट का पेपर हो, चाहे जीएस का पेपर हो, राइट। विदाउट रिवीजन आप के लिए एग्जाम को क्रैक करना बहुत हार्ड हो जाएगा। तो आपको रिवीजन पे फोकस करना है। कोई भी टॉपिक आपको आता है तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में उसके कॉन्सेप्ट्स और आप वो क्वेश्चन कर ही पाओगे, ठीक है। किसी भी टॉपिक से फैमिलियर होना एक अलग बात होती है, पर उसके क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात होती है। आपने देखा होगा जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, एग्जाम में क्या होता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था पर इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। ये थॉट बहुत आता है अंदर से, ठीक है। तो आपको सारे टॉपिक्स ऐसे लगेंगे कि फैमिलियर है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि आप एग्जाम में उस टॉपिक को, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये होगा प्रैक्टिस से, राइट। और प्रैक्टिस आप कर पाएंगे जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन इज़ द मस्ट, ठीक है। रिवीजन अगर आप देखेंगे तो रिवीजन ही है जो फाइनल चीज़ है जो आपको ये एग्ज़ाम क्रैक कराने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो रिवीजन को करना ही है, राइट, उसको मिस नहीं करना है, ठीक है। तो रिवीजन पे फोकस करना। सो नाउ द फाइनल मंत्रा, सो द फाइनल मंत्रा फॉर यूपीएससी इज दैट डरना मन है। देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आ गए हैं, ठीक है, आपको आईएएस बनना ही है, तो फिर डर से कोई मतलब ही नहीं है, राइट। कुछ भी हो, कैसा भी पेपर आए, किसी भी एरिया से यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, हमें तो यूपीएससी क्रैक करना ही है, राइट। तो डरने से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको अगर एंजाइटी हो रही है, आपको अगर डर लग रहा है, आपको अगर प्रेशर फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है या आपने अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा है या आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है, आप किसी भी स्टेज में हो या आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, औरों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, राइट। तो आप किसी भी स्टेज में हो, अभी भी बहुत एनफ टाइम है, आप अभी भी कर सकते हैं। आपको बस ये फील होना चाहिए, आपको अपने आप को ये बोलना होगा कि जैसे देखिए थ्री इडियट जो मूवी थी उसमें आमिर खान एक बहुत बड़ी चीज़ बोलता है, अगर आपने वो मूवी देखी हो तो उसमें एक मैसेज है कि आप जो दिल होता है वो बहुत डरपोक होता है, राइट। तो उसको आपको बोलना पड़ता है कि ऑल इज वेल, राइट। तो वो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप उस कंसेप्ट को अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज़ करना है, आपको अपने दिल को बोलना है कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, राइट। मैं ये कर लूँगा, यूपीएससी में क्रैक कर लूँगा,
सी सेट मेरे से हो जाएगा, ठीक है, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो आपको एक विश्वास रखना पड़ेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी अपनी स्टडी के प्रति, यूपीएससी के प्रति, ठीक है। तो आप ये आराम से निकाल लेंगे एग्जाम को, राइट। तो आपको ये बिलीव होना चाहिए कि ये आपसे हो जाएगा, क्वेश्चन आपको धीरे धीरे समझ आ जाएंगे, आप बस प्रैक्टिस करिए। अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं कराया है तो आप स्टार्ट करिए, काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है, आप अभी भी निकाल लेंगे, राइट। लोग बाग तो सिर्फ 10 दिन पढ़ते हैं उसमें निकाल लेते हैं, अभी तो आपके पास 20 दिन है, राइट। तो अभी भी एनफ टाइम है, आप रिवीजन के साथ आप इसको कर लेंगे, सी सेट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और अगर आपको कभी भी कोई भी इश्यूज रहता है तो आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं, एंड आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट योर एनी इश्यूज रिलेटेड टू आइदर सी सेट और जीएस और एनीथिंग। ओके।